बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दी पोइम। इसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ जो कि है हमारे पास पेज नंबर 35 पर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 35 ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 35 पे टॉप पे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास है जी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास पार्ट नंबर ए है अंडरस्टैंडिंग द पोइम। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Part number A. What is needed for the twig to become healthy and strong? तो इसका ये आंसर है the twig should be planted, watered and set where the sun will be above it to become healthy and strong. Part number B पे आ जाएं. In what way will the twig develop if it is cared for? If cared for, the twig will develop into a tall bush with many flowers and sprinkling leaves. See what is a closet and what might be found there. A closet is a large cabinet or area like a cupboard for storage. In it there may be odds and such as mousetrap and blunted tools. D. In a closet mentioned in a poem used much. How do we know? So the closet is not used much. There are mousetrap in it. Mousetrap is not used very often and the tools are blunt, again showing that they are seldom used. उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग E part पर. Will the twig grow in the closet? Why? The twig will not grow in the closet because it is too dark and there is little fresh air inside. F. What is the twig compared in the to in the second stanza? The twig is compared to an old twisted nail. उसके बाद आ जाते हैं. This question is more difficult. Discuss them first. Do you think the poet has a message or messages for the reader? Look after and encourage something even if it is small and appear useless. The poet is also telling us the nature and look after young living things, children for example, and by doing so they will blossom into wonderful beings. आगे है इसका आंसर. If children are neglected and uncared for, they will not reach their full potential. ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक हो गया. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फाइंड वेयर दिस एक्सप्रेशन आर यूज इन द पोएम. रीड द लाइन अप नंबर ऑफ टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन. एक्सप्लेन द मीनिंग इन योर ओन वर्ड. पार्ट नंबर ए है इट इज़ नॉट ओनली अ लिटिल टॉय. ठीक है, तो इसका मैं आपके साथ सारों के इकट्ठे शेयर कर दूंगी. तो ये देखिए, it is nothing more. It appears insignificant. For example, he is only a small boy. How can he be expected to do this hard task? B part में जो है and plant it, replace it where the sun will. C. Grow sprout vigorously and healthy all over the place. Regain their upright posture. Brush against collide with each other. उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेंट. विथ माउस ट्रैप्स एंड ब्लंट टूल्स इट इज शिवरल एंड वेस्ट. व्हाट डज इट रेफर्स टू? द वर्ड इट रेफर्स टू द ट्विग. उसके बाद बी पार्ट है वेयर आर द माउस ट्रैप एंड ब्लंट टूल्स. माउस ट्रैप एंड द ब्लंट टूल्स आर इन द क्लोजेट. और सी what might it look like after it what might it look like later if it is left with the mousetrap and blunted tools. तो इसका आंसर है जी the twig might look like an old twisted nail. ठीक हो गया. अब आ जाते हैं हम लोग इसके बी पार्ट पर. बी हमारा है वर्किंग विद वर्ड्स. पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. इसके अंदर फाइंड वर्ड्स ऑफ द अपोजिट मीनिंग इन द पोएम. इनका अपोजिट लिखना है. लार्ज, लिटिल, शॉर्ट, टॉल, बिलो, अबव, फ्यू, मैनी. स्टेनलेस, फ्रेशनेस, शार्प, ब्लंटेड, स्ट्रेंथन, वे, स्ट्रेट, ट्विस्टेड, स्टिल, नॉट मूविंग, ब्लोइंग, क्लोज, ओपन. ठीक हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है जी थिंक ऑफ सुटेबल एडजेक्टिव टू गो विद द नाउन. यू मे फाइंड वन और टू इन द पोएम.
तो इसका आंसर ये है जी मेरे पास, डस्टी, डार्क, really used closet. Part number A, part number B, rusty twisted iron nail, C blowing cold harsh wind. ठीक हो गया। उसके बाद जी हम लोग आ जाते हैं डी पर, ग्रास, लश ग्रास ब्लेड्स, ई लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रस्टी withered roots, rustling green red yellow brown new old leaves। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सी, लर्निंग द लैंग्वेज, और इसके अंदर हम लोग जी आ जाते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस पर। सेंटेंसेस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट सेंटेंसेस विच इज नॉट। ठीक है, तो मैं आपके साथ इसका सारा शेयर कर रही हूँ। पार्ट नंबर ए, शी लाफ्ड प्लेजेंटली, कंप्लीट, देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, देयर इज अ finite verb, it makes complete sense. B, the large black dog, incomplete, there is no verb of any kind, there is no predicate. C, walking along slowly, incomplete, there is no finite verb, there is no subject, we do not know who and what is performing the action. Sit down, complete, there is a finite verb, there is a subject and a predicate, the subject is understood you। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं ई, द इंजन विसल, इनकम्प्लीट, देयर इज नो फाइनाइट वर्ब, देयर इज नो प्रेडिकेट। और फिर एफ पार्ट पे आ जाते हैं, दे प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, पर कंप्लीट, देयर इज अ फाइनाइट वर्ब, देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन ऑफ द फॉलोइंग। अंडरलाइन करना है तो आप लोगों के सामने मैंने इसको अंडरलाइन वाले सारे शो किए हुए हैं, जो जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो प्रॉपर नाउन है। और फिर मेरी द लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन द फॉलोइंग पैसेज, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस पैसेज के अंदर से मैंने कॉमन नाउन भी अंडरलाइन करती हैं, आप लोग भी इसको देख के मेरा अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन। आपने प्रॉपर नाउन को बताना है, मेक अ लिस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इन द कैपिटल लेटर्स। अब आपने इसके अंदर प्रॉपर नाउन को टिक करना है, तो मैंने उस प्रॉपर नाउन को टिक कर दिया है। जो जो प्रॉपर नाउन है आप लोग लिख दीजिएगा। सारों को सिर्फ नाम लिखने हैं, तो नाम आप लोगों को बता दें कौन कौन से प्रॉपर नाउन है वो कर दीजिएगा। ट्राई टू मेक एडजेक्टिव ऑफ दिस प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन आप लोगों को गिवन है, आप लोगों ने इनके एडजेक्टिव बनाने हैं। रिमेंबर टू स्टार्ट द एडजेक्टिव टू विद कैपिटल लेटर। आपने याद रखना है कि एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ब्राज़ील ब्राज़ीलियन, एलिज़ाबेथ एलिज़ाबेथियन, मार्स मार्टियन, स्पेनिश स्पेन स्पेनिश। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। वीडियो में दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।